Good afternoon. Are we all? Are we all? Good, ma'am. Good. Infected. Infected? Yep. ओ ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बिल्कुल अपना। हम्म, और चलिए लास्ट इन पे इन द लास्ट इन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड Bonding. बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवाइज करें, मुझे बताइए क्या क्या हम लोगों ने लास्ट इन पे डिस्कस किया था। Types of bonds. Ma'am, you told about types of bond. Yeah, I've told about the types of bonds, means electrovalent bond, covalent bond, and the coordinate bond, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Introduction was going on. Okay, introduction was going. So now you all are aware about all the bondings and chemistry. Hmm? Yes, ma'am. Electrovalent bond, covalent bond, and the coordinate bond. What is coordinate bond, bachcha? Who will tell me what is the meaning of coordinate bond? What is the meaning of coordinate bond? When there is only one donor or acceptor at one time. Okay. Can you give the example for the same? SO2. Mean nitric acid. Example bit. Ma'am, it's a type of covalent bond in which both the electron come from same atom. Okay, it's a type of covalent bond, coordinate bond. But in covalent bond, there is No, ma'am. sharing takes Ma'am, place. there Ma'am, is both the neutral electron sharing. is given from one atom only. Okay, uh, it's really given by one atom to the another atom. If it is given by one atom, then there will be charge, positive charge and the negative charge. If the atoms, if electrons are given by some atom, then what will happen? It will be charged positive, and those are taking electrons, then there will be charge of negative. No? ऐसा Electrons are होता contributed. Electrons are contributed by one atom, but shared by both the atoms. Yes, ma'am. both atoms. Okay. जी मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट इन पे आप लोगों को, इसका कुछ अमोनिया एंड BF3 का एग्जांपल कुछ मैंने आपको दिया था। No, ma'am. अमोनिया BF3 एग्जांपल नहीं दिया था। ओके, हम लोग बात कर रहे थे मॉर्निंग में, तो हम लोगों ने ये देखा था स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स में क्या हो रहा था कि भाई गिव एंड टेक, है ना। मीन्स अभी तो आप ये पहले ये समझ लेंगे कि भाई मैंने बताया कि बॉन्डिंग का मतलब इन द केमिस्ट्री मीन्स दैट्स अ फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप बिटवीन द एटम्स, how the molecules are formed. You know, when the two or three atoms are combined together by the bonding, and they will form the molecule, and then these molecules will combine together and they will form the compound, right? So if you're talking about the bonding here, means their friendship. So there's three types of friendship: electrovalent friendship, in which the one atom is giving electrons to another atom. For example, NaCl. In NaCl, what happened? Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, तो Na के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, देयर इज अ क्वेश्चन कि why these processes are going on, what is the reason behind this, why the some atoms are giving electrons or why some atoms are sharing electrons, what is the reason behind this? क्यों ये To एटम achieve Unit novel gas stability. configuration. And to gain To stability, achieve that novel gas is to configuration. complete its octet. क्या means each and every atom wants to complete its octet. And what is the meaning of octet? Complete its octet. What is the meaning of this line? Each and every atom wants to complete its octet. What is the meaning of this? And to get noble Number of gas configuration.
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम लोग इस बात को जाने कि हर एटम क्या चाहता है बच्चों, वांट्स टू कंप्लीटेड ऑक्टेट, मतलब कि अपनी लास्ट आउटर मोस्ट Valence ऑर्बिट, shell. आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है ना, क्या करना चाहता है, अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में वो क्या करता है, दूसरे एटम से या तो लेता है या फिर शेयरिंग करता है, और इसी प्रोसेस से फिर क्या हो जाता है, आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, एटम से मॉलिक्यूल बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये जाने, ये धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जाने कि मेन क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को होना चाहिए लास्ट ऑर्बिट, जो हमारी वैलेंस शेल कहलाती है, हर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। Inert gases, why they are known as inert gases? Because they are having 8 electrons in their valence shell, except helium. हीलियम क्या होता है, जैसे हीलियम है या हाइड्रोजन है या लिथियम है, ये ऐसे एटम से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, है ना। बाकी जितने भी एटम्स हैं दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मगर जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ड्यूप्लेट क्योंकि इनके पास एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते ही हैं इनके पास, तो ये ड्यूप्लेट मतलब हो गया इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना, अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस केस में वो क्या करेंगे, वो दूसरे एटम से बातचीत शुरू करेंगे कि भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या मुझे दोगे, या मेरे पास 8 से ज्यादा है तो क्या मुझसे लोगे। ऐसा करके आपस में इनकी एटम की कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया, यू कैन से इनके आपस में बॉन्डिंग शुरू हो गई, फ्रेंडशिप शुरू हो गई, ठीक है। तो एक मैंने बताया था कि आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था कि NaCl, तो NaCl में कैसे NaCl को इलेक्ट्रॉन देता है और क्यों देता है, व्हाट इज द रीजन, कैसे NaCl की बॉन्डिंग हम बताएंगे स्टूडेंट। NaCl में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो होता है NaCl में, फर्स्ट बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बोर्ड बताना मुझे विजिबल है ना, बोर्ड विजिबल हो रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. आप इफ यू टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl है, ठीक है, Na is having the atomic number कितना होता है इसका 11, configuration will be 1s2 2s2 and 2p6 and 3s1। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आता है, Yes, ma'am. लिखना Yes, आता है ma'am. ना। 11 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि फर्स्ट वाली शेल में सिर्फ कौन सा सब शेल होता है, हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था ना। फर्स्ट वाली शेल में क्या होता है, S होता है, और सेकंड वाली शेल में क्या होता है, S और P बोथ, ठीक है। और थर्ड वाली शेल में क्या होता है बच्चों, बताइए, थर्ड शेल में कौन कौन से SPD. सबसेल्स होते हैं, SPD. है ना, SPD तीनों होते हैं, और फोर्थ वाली शेल में SPDF, है ना, ऑल 4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तो सिर्फ 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या होगा 1s में आपको पता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 1s2, ठीक है। फिर सेकंड वाली शेल में S और P दोनों हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 2p6 हो गया। अभी 6 और 2 और +2 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए हैं, 11 ही तो हमको लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 3s1। S में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और P और D भी इसके पास होगा, बट दे आर वेकेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं, दे आर वेकेंट। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब अगर क्या करें, ये जो कॉन्फ़िगरेशन जब 3s1 है, मैंने क्या बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हर एटम क्या करना चाहता है बच्चों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और इस केस के लिए क्या करना पड़ता है उसको,
क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को ये तो लेगा या देगा। अब है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, तो अब क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाएगा? अगर आपके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तब तो आप किसी से ले दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर तो 3s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो ये सही नहीं रहेगा ना, कोई नहीं देगा तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये भी ये किसी को दे दे, किसी को दे देगा। अगर ये किसी को दे देगा तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके पास ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी को दे दिया, ऑर्बिट फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसके पास क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट भी खत्म हो गई, तो अब क्या बचा, 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। लास्ट वाली ऑर्बिट में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर देखें सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब हर एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, 8 को लास्ट वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अब इसके पास क्या है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, अगर ये भी किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसकी ये लास्ट ऑर्बिट खत्म हो गई ये वाली। अब लास्ट कौन हो गई, ये वाली। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वजह से क्या हो गया कि सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देता है। जब किसी को दे देगा तो Na के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, +1 का चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन के केस में देखिए, क्लोरीन के केस में क्या है, 17 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सॉरी एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5, ऐसे ही होगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन है, ये सही कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। तो लास्ट वाली शेल कौन सी इसकी, थर्ड वाली। थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस क्लोरीन इज नीडिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहाँ से देगा, ये सोडियम इसको दे देगा अपना ये इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने ले दिया। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें कि हम इसको बोल रहे हैं गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। एक ने लिया तो एक ने दिया और दूसरे ने ले लिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, NaCl के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, यू? ma'am. Yes, ma'am. Now comes to the second bonding, the covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, Mutual sharing. हाँ, Mutual शेयरिंग हो रही है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सपोज करो कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 6। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या है कि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन, अभी आपके पास 1 या 2 की कमी है, 3 की कमी तो कोई दे देगा आपको, 4 है तो नहीं कोई देगा, तो 4 तो उनको कोई देगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ना ही ये शेयर कर, ना ही क्या कर सकते हैं ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दें। जैसे सोडियम ने क्या कहा था, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया था, अगर ये सबको दे देंगे तो भी इनके पास, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम है वो वही की वही रहेगी। इस केस में ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे, जैसे मीथेन बनाते हैं तो 1 2 3 4, इनके आउटर मोस्ट में 1 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन आया इनके पास, इनके पास हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या चाहता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं।
तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब इस केस में क्या करेगा, ये इससे शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा, ठीक है। ऐसे ही ये कार्बन इससे भी शेयरिंग करेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा, ठीक है। ये इससे भी शेयर करेगा, ये इससे भी शेयर करेगा। अब क्या होगा, कार्बन के पास अपने तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिल गए, शेयरिंग से मिल गए। तो कार्बन के पास टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 2 2 2, है ना। तो अब क्या होगा, दोनों का जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो गई। बोथ आर हैविंग देयर stable conditions. Stable electronic. Yeah, means the carbon is having now 8 electrons in the outermost orbit and the hydrogen is having 2 electrons in its outermost orbit, right? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शेयरिंग से। शेयरिंग हो गई, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे सॉलिड लाइंस हैं। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग से हो रहा है यहाँ, ठीक है। आगे आगे बात समझ में इतनी। Yes. Yes, ma'am. नाउ कम्स टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी को स्टूडेंट को जो भी डाउट हो, ये मत समझिए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप कुछ पूछ नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर मैंने बोर्ड भी लगा रखा है कि आपको सब दिखे, ठीक से विजिबल हो, और जहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत उसको आप पूछेंगे मुझसे। नाउ सेकंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग NH3 और BF3 का। एग्जांपल हमने लास्ट टर्म पे लिया था क्या, No, ma'am. नहीं लिया था, ओके। NH3 और BF3, सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए। नाइट्रोजन का बच्चे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2p 3, है ना। तो अब 7 हो गया टोटल। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 + 2 5। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियरली विजिबल है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको बोर्ड दिख रहा है, विजिबल है, Yes, ma'am. है ना। तो नाइट्रोजन के पास अभी आपके क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट में। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट पे कितने होते हैं, 1 1 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, तो उसने क्या करा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। तो अब क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास 5 तो थे पहले से, और ये 6 7 8, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन के पास अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल नाउ सेटिस्फाइड, इसके पास कोई दिक्कत नहीं है इसको। अच्छा, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूजिंग इन मेकिंग बॉन्ड्स। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ यूज हो रहे हैं, बॉन्ड्स बनाने में यूज हो रहे हैं, दे आर यूजिंग इन मेकिंग बॉन्ड्स। बट नाउ इट हैज 2 more इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 2 क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी बॉन्डिंग में ना। कम्स टू द इन BF3। BF3 केस में देखिए आप, ये बोरॉन का एटॉमिक नंबर बच्चे होता है 5, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p, बोलिए 1
1, वेरी गुड। तो इसका मतलब बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, ठीक है। और फ्लोरीन है इसके साथ, फ्लोरीन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p 5 5, है ना। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्लोरीन के? 7 7 हो गए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब क्या हो गया, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट नीड्स कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 1 चाहिए, ठीक है। इसको 1 चाहिए, सबको 1 चाहिए। और बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। अभी क्या करेगा, सबसे शेयरिंग करेगा। तो फ्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक बोरॉन से मिल गया, 8 कंप्लीट हो गए। ये बोरॉन भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला सॉरी ये वाला फ्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाला फ्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये वाला फ्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट ना, बोरॉन इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग से मिल गए हैं। एक ये शेयरिंग से मिल गया, एक ये। टोटल अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? 6 6 हो गए, है ना, 6 हो गए। और होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो अभी इसका मतलब स्टिल ये होने के बावजूद क्या है, बोरॉन इज नीडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन इज नीडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसको कहाँ से मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स? आप देखो, ये BF3 का एक मॉलिक्यूल है, ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब इस केस में अमोनिया इसकी हेल्प कर सकता है। हेल्प कैसे करेगा? वो बोलेगा कि चलो ठीक है, मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, नॉन बॉन्डिंग है, मैं तुम्हें दूंगा तो नहीं, अगर दे दूंगा तो मेरे पास कमी हो जाएगी, मैं तुम्हें दूंगा नहीं। शेयरिंग भी नहीं कर सकते, शेयरिंग करेंगे तो इनके पास तो कुछ शेयरिंग करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि शेयरिंग क्या होती है, दोनों बराबरी से होती है ना। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हम तुम्हें दें तुम हमें दो, इनके पास तो देने के लिए है नहीं कुछ। तो इस केस में क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनकी तरफ हल्का सा शिफ्ट करेगा, हल्का सा शिफ्ट करेगा, देगा नहीं, दे देगा तो इसके पास कमी हो जाएगी। हल्का सा शिफ्ट करेगा और ये जैसे हम लोग को नॉर्मल भाषा में बोले तो ये कहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अपना ही इलेक्ट्रॉन समझो, है ना। यहाँ पर क्या होता है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इस केस में इसकी हेल्प कर देता है तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एक फ्रेंडशिप हो गई, बॉन्डिंग हो गई। ये कैसी बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं रहे, अगर दे देते तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता। इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है, Na+ ने क्या कर इलेक्ट्रॉन दिया, Cl- ने ले लिया। कोवैलेंट में आपस में शेयरिंग होती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही है, गिव एंड टेक नहीं हो रहा, ये हल्की सी शिफ्टिंग हो रही है। इसको फिर बोलेंगे डोनर मॉलिक्यूल या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। मगर डोनर एक्सेप्टर तो कह रहे हैं, मगर हल्की सी शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, पूरा इलेक्ट्रॉन ही इसको नहीं दे देगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। जैसे अगर मैंने आपको शायद एग्जांपल दिया अभी तक कि मैं आपके घर आई, आपने कहा कि मैम मेरे घर को अपना ही घर समझिए, आपने सिर्फ ये बात कही, अपनी कोई जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं कर दी, ये पेपर्स लाया और लिख दिया कि आज से मैम ये घर आपका, ऐसा नहीं करते। आप कहोगे मैम मेरा घर को अपना ही घर समझिए, और ये कह करके आपने क्या करा, हमारे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई कि हाँ भाई कितना अच्छा बच्चा ऐसी बात कर रहा है, एक फ्रेंडशिप हो गई ना। सेम वे केमिस्ट्री का हम समझना चाहें तो केमिस्ट्री को हम अपने से रिलेट करके पढ़ें तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और पूरी पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। उसमें वो भी शायद आपके कोर्स में हाँ वो है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि कैसे BF3 और अमोनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रही है, Yes, ma'am. समझ में आ गई, है ना। तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट
bond. Now, तो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग तो अभी आपको ये समझ में आ गई कि ऐसे से बॉन्डिंग होती है। फोर्थ बॉन्डिंग कहलाती है हमारी मेटालिक बॉन्ड। ये तो 3 मेन बॉन्ड्स हो गए। मेटालिक बॉन्ड्स का नाम सुना आप लोगों ने? Have you heard of this ever? What is metallic bond? मेटालिक बॉन्ड का नाम कभी सुना है? Have you ever heard this name? मैम सुना है। I have heard, but कोई आइडिया है? देखो डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना, जहाँ पर ऐसी टीचिंग नहीं हो रही, डिस्कशन हो रहा है। हो सकता है कि आपको हमसे ज्यादा आता हो तो आप हमें बताइए, हमें ज्यादा आता हो तो हम आपको बता देंगे, डिस्कशन होगा यहाँ पर। और हम गलत बताएं तो आप हमें इंटरप्ट करिए, आप गलत बताएं तो हम आपको इंटरप्ट करेंगे। मे बी हाँ, आयनिक बॉन्ड कोई मेटालिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड नहीं। देखो मेटालिक बॉन्ड का मतलब ही यहाँ पे वर्ड से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि मेटल्स में हो रहा होगा इसका मतलब। मेटल्स में कैसे होता है बच्चों कि इतना तो भी समझ में हमको आ गया कि भाई एटम उस तरीके से जुड़ेंगे कि या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, भाई जुड़ेंगे तभी तो कोई स्ट्रक्चर शेप बनेगी। अब जैसे पेन, ये मैं एक मार्कर ले हूँ अपने हाथ में ली हूँ, ये सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है और इसकी अपनी क्या है, शेप है। तो शेप है, क्यों शेप है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एटम्स जो होंगे आपस में जुड़ गए होंगे, मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, मॉलिक्यूल भी आपस में कंबाइन होकर के उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर दिया, कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया। और अगर इनके बीच में आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा होता, कोई भी आपस में क्या कहते हैं उसमें कुछ फ्रेंडशिप नहीं हो रही होती, कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, तो सारे एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते, फ्री होते इधर उधर घूमते, मतलब गैस स्टेट पर होते। मगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो सॉलिड का मतलब ये क्या हो गया कि जरूर से इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई ना कोई तो बॉन्डिंग तो हो ही रही है, ठीक है। और इसी वजह से कोई भी चीज हमको एग्जिस्ट करती दिखाई दे रही है। अब अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, ठीक है, अगर हम सोडियम मेटल होता है, लिथियम मेटल होता है, कोई भी अगर हम आपको मेटल का पीस, आयरन है मेटल है, हमने आपके हाथ में कोई मेटल का पीस दे दिया, ठीक है, मेटल का पीस दिया तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी मेटल के एलिमेंट्स ही तो होंगे। अगर मैंने आपको इतना बड़ा सोडियम का पीस कट करके दिया, सोडियम जो होता है बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है ना, उसको कट कर देते हैं और उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, वरना वो तुरंत इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल और तुरंत क्या करता है, फायर कैच कर लेता है। तो अगर सोडियम का इतना बड़ा पीस है, हमने कट करके दिया, वो सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है, कट करके दिया, तो उस सोडियम के मेटल के जो पीस मैंने आपको दिया है उसमें कौन कौन से एटम्स होंगे? उसमें कौन सोडियम एटम्स। सिर्फ और सिर्फ सोडियम एटम्स ही होंगे, है ना, वेरी गुड। में सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही एटम्स हैं। जब सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम्स हैं तो अब बॉन्डिंग कौन सी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट होगी कि कोवैलेंट होगी कि कोऑर्डिनेट होगी? सोच के बताओ जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ मैम इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रो जो में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब तो ये होगा कि एक देता है, एक लेता है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम है। अगर सोडियम देने वाला है तो लेने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं। मेटालिक बॉन्डिंग होगा। मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग होगा मैम। हाँ, तो अब यहाँ पर समझने वाली बच्चे बात क्या है यहाँ पर कि इस केस में कि अब सिर्फ और सिर्फ Na ही है। जब सिर्फ और सिर्फ Na है तो उसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये देना तो चाहता है, मगर कोई लेने वाला तो हो, तो कोई लेने वाला तो है नहीं। सारे सोडियम क्या है, सब देना चाहते हैं, सभी देना चाहते हैं, तो यहाँ जब कोई लेने वाला ही नहीं है तो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, सोडियम को तो फिर अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, फिर तो गैसियस स्टेट में रहना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में बंधा हुआ कैसे है? अगर हम कोवलेंट की बात करें, जो हम भी जाने इलेक्ट्रोवैलेंट तो नहीं होगा, आप कोवलेंट की बात करें तो कोवलेंट में भी क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग कहाँ होगी, सोडियम तो चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो यहाँ पर भी शेयरिंग का मतलब ही नहीं बैठ रहा, तो शेयरिंग भी नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट में भी क्या चाहिए, एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं है। हम्म
आप रेजोनेंस। Delocalization of electrons होगा। हाँ तो अब मैम मैम रेजोनेंस। बाकी मैम तो वन अब इस इलेक्ट्रॉन। केस में क्या, हाँ सत्यम क्या बोल रहे हैं आप? ना मैम आप सत्यम कुछ कह रहे थे आप? तो अब इस केस में क्या पता बच्चे चला लेकिन कि हाँ इस केस में क्या है, ना तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो पा रही है, ना कोवैलेंट बॉन्डिंग हो पा रही है, और ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो पा रही है, मगर फिर भी कोई ना कोई बॉन्डिंग तो है। बॉन्डिंग है तभी तो हमको सोडियम का वो पीस दिखाई दे रहा है सॉलिड स्टेट में। बॉन्डिंग का मतलब है आपस में बंधा हुआ, मतलब आपस में कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स तो काम कर ही रहा है। मतलब अब वो कौन सा फोर्स है, तो इस पर फिर रिसर्च हुई और साइंटिस्ट ने कहा कि इसका मतलब मेटल्स में अपना एक अलग ही बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। कि मेटल्स में आपस में जब ये जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक दूसरा एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। अब वो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है ये अब हम लोग जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड का पहली बात तुम्हें समझ में आ गई कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटल और मेटल के बीच में, मेटल और मेटल के एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाला बाइंडिंग फोर्स है। इट इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द मेटालिक एटम्स, है ना, इन अ कंपाउंड। तो उसमें क्या होगा कि ये आपस में बंध जाएंगे। अब मेटालिक बॉन्ड होते क्या है उसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। तो उसके लिए स्टूडेंट्स तीन थियरीज आई थी, थ्री थियरीज आई थी ये मेटालिक बॉन्ड्स को बताने के लिए। फर्स्ट थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, and the second one is that resonance theory, and the third one is molecular orbital theory for explaining the metallic bonds. I'm repeating this line. There are three theories for explaining the metallic bonds. Metallic bond को explain करने के लिए तीन theories आई। First one is electron C theory. इलेक्ट्रॉन सी थियरी। सी मतलब समुद्र, SEA सी, सी मतलब क्या होता है समुद्र ना। तो इलेक्ट्रॉन सी थियरी। द सेकंड वन इज रेजोनेंस थियरी एंड द थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी फॉर एक्सप्लेनिंग द मेटालिक बॉन्ड्स। ये तीन थियरीज थी। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन सी थियरी में आपको भी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। बाकी जो मेन थियरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेंगे तब। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ सुपरफिशियल जो बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री की वो पढ़ रहे हैं, और ये सब आपके कोर्स में भी स्टूडेंट्स हैं। कोर्स में आपकी जितने भी केमिकल बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सब आपके कोर्स की ही चीजें हैं। सबके पास सिलेबस आ गया होगा, है ना? ऑल हैव गॉट द सिलेबस। यस मैम। Yes, सिलेबस है तो उसमें अंडरलाइन करते जाना जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ। उसमें तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हम लोग मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करने के लिए जो पहली फर्स्ट थ्योरी आई थी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, तो उसमें स्टूडेंट्स का सबसे पहले आप ये जानिए कि मेटल्स होते क्या हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल। मेटल की खासियत क्या है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। And they can lose electron easily. हाँ दोस्त, They can lose electron. हाँ दे आर इलेक्ट्रो बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस दे दे कैन इजीली give या Donate remove electrons. electrons, because they can easily remove electrons from their outermost shell। उनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे दें, है ना। तो अब जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में आपने देखा कि 3s1 था, वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को भी दे देता है, बिकॉज ये अपने क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके आउटर मोशन में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इतने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। ये बात ये हम याद रखेंगे, ठीक है।
आप ये इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, तो अब क्या हो जाता है, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो क्या चार्ज आ गया, +1 का चार्ज आ गया, है ना, यही तो हुआ। तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आ गया था। अब यहाँ से ऐसे समझते, जस्ट मिनट। ये है, पढ़ रहे हम लोग मेटालिक बॉन्ड्स। ये सबसे पहली जो फर्स्ट थ्योरी आई है, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। ये सब जितनी बातें मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स नोट करते जाइए, है ना, यही आपके नोट्स हैं। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है कि ये जो एटम्स हैं ये क्या करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से निकाल देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो सपोज करो ये है, इसके ऊपर अपना पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ऐसे ढेर सारे एटम्स, ढेर सारे मेटालिक एटम्स यहाँ पर होंगे, मेटल के एटम्स होंगे, और इन्होंने क्या कर रखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया होगा इजीली, और चारों तरफ इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्या कर रहा है, जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है। इनके चारों तरफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, विजिबल है? यस मैम। यस मैम। है ना। तो अब इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। सी का मतलब क्या, समुद्र, है ना। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से क्या बन गया, सी बन गया है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और उस इलेक्ट्रॉन का जो सी बन गया है उसमें ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स थे वो यहाँ पर फिक्स हो गए। क्यों फिक्स हो गए, अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात है, क्यों ये फिक्स हो गए हैं। अब सपोज करो इसकी बात कर रहे हैं हम, इस मेटल एटम की हम बात कर रहे हैं, इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस A+ को अपनी ओर खींचेगा, पुल करेगा, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर उसको खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो मुझे बताओ कि ये A+ कहीं पर मूव कर पाएगा? नो मैम। नो मैम। नहीं कर पाएगा। क्यों मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से आप देख रहे हैं, है ना, ये चारों तरफ से क्या हो रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी तरफ खींच रहा है ना। सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अब इसको अपनी ओर ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, A+ की जो अपनी पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी, हिल पाएगा अपनी जगह पर? नहीं हिल पाएगा। इसी तरीके से सेम इसको देखिए आप, ये A+ से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, तो ये इसकी पोजीशन में फिक्स हो गई। इस तरीके से सारे A+ की पोजीशन क्या हो गई बच्चों, फिक्स हो गई। फिक्स हो गई, अपने कब बंध गए, इसी को हम बोल रहे हैं उसका जो बाइंडिंग फोर्स है। बाइंडिंग फोर्स मतलब कि क्यों ये सब अपनी जगह पर फिक्स हैं और इन्होंने अपना कोई स्ट्रक्चर बना के हमें दिया हुआ है। अगर वैसे सपोज करो ये मैंने बोला ना मार्कर है, ये सॉलिड स्टेट में, तो क्यों सॉलिड स्टेट पे, क्योंकि जरूर से इनके एटम्स के बीच में कुछ बाइंडिंग फोर्स होगा, उससे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनके बीच में कोई बाइंडिंग फोर्स होगा और उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है। और अगर इनके बीच में फोर्स नहीं काम कर रहा होता तो क्या होता, A+ सब अलग अलग हो जाते और गैसियस स्टेट पे चले आते, गैस बना देते, है ना। तो इसका मतलब ये सब यहाँ पर फिक्स हो गए। फिक्स करने के लिए क्या हो गया, यहाँ पर चारों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं।
So this is the electron field theory for explaining the metallic bonds. And what is metallic bond? It is the binding force between the metallic atoms. Metallic atoms के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा है जो उनको आपस में बांधे हुए हैं, उसको बोल रहे हैं मेटालिक बॉन्ड. और मेटालिक बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन करा. ठीक है, इस तरीके से सारे जितने भी हमारे यहाँ पर A+ थे वो फिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉन की C बन गया. अब इसमें बात अगर आती है कि ये कैसे, किस तरीके से इसमें यहाँ पर ये तो फिक्स तो यहाँ पर हो गए हैं, किस तरीके से इनमें कंडक्टिविटी कैसे आ गई. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये थ्योरी कैसे बता पाएगी कि कैसे अच्छे कंडक्टर हैं, बताइए जल्दी से. मैम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. हाँ, बिकॉज दे आर हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन. ये सारे तरफ इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है. आपको पता है कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर कैसे हो सकता है, जब उसके पास कुछ चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हो. इफ दे आर हैविंग द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, तो वहां पर क्या हो जाता है कि वहां पर कंडक्टिविटी आ जाती है. तो यहाँ पर भी क्या है, बट ढेर सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके पास है, इस वजह से क्या हो गया, इट्स अ गुड कंडक्टर. मगर फिर भी कई बातें ऐसी थी जो मेटालिक बॉन्ड, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो फिर उसके बाद और दो थ्योरीज आई जो मैंने बताया. सेकेंड वन इज रेजोनेंस थ्योरी एंड द थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द मेटालिक बॉन्ड्स. एंड दैट विल बी डिस्कस लेटर, क्योंकि अब हम बाद में डिस्कस करेंगे. जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे. अभी इतना समझ में आ गया मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में, जो फर्स्ट थ्योरी थी. ठीक है, तो तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली थी मेटालिक बॉन्ड्स पे. ये अब ये फोर्थ हमारा बॉन्डिंग थी, मेटालिक बॉन्ड्स. अब स्टूडेंट्स आता है कि अच्छा, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड? Yes, ma'am. यस मैम. क्या होते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड्स, क्या होते हैं? ये तो ये बॉन्ड नहीं सिंगल होगा, बॉन्ड. सिग्मा. सिंगल बॉन्ड को सिग्मा और मैम डबल बॉन्ड को मैम उसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. Sigma bond is found along the internuclear axis and pi bond is when it is perpendicular bond is found. ओके. सिग्मा बॉन्ड मैम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है. मैम सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग करता है. Okay, so how the sigma and the pi bond are different from the this electrovalent bond? ये भी तो bonding ही है. electrovalent bond, covalent bond and coordinate bond, ये भी bonding है. और sigma bond, pi bond, ये भी bonding है. ये उनसे different कैसे हैं? मैम टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. मैम इसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है. और क्या बता रहे हैं? मैम इसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, वेरी गुड कीर्ति. और प्रशांत क्या कह रहे थे भैया? मैम दे आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. मैम दे आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स नॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइप्स नहीं हो सकते सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. ये कोवेलेंट के ही टाइप्स हो सकते हैं. मैम सिग्मा बॉन्ड मैम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है. अगर मैम कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब सिग्मा को कोवेलेंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं कह सकते, क्योंकि मैम अगर हम एनर्जी देंगे तो टूट जाएगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, बट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा. नहीं, आई एम आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो एक पार्ट हो गया. बाकी जो अभी हम लोगों ने पढ़े इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनसे ये कैसे डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? क्योंकि बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं. जब हम ये बॉन्डिंग पढ़ाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में भी आ जाते हैं. ये इनसे कैसे डिफरेंट है? अच्छा, अभी यहाँ पर अभी जैसे आप लोग लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है या व्हाटएवर जो भी आप लोग के घरों में है, तो जब कभी अगर आपको कोई सामान खरीदना होता है तो आप क्या करते हैं? मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना. मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो
अब जैसे आपको किसी का फीस भरनी है, किसी को पैसे देने हैं, किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, ये आपको करना है उसको, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये बॉन्डिंग है कि आपको ये करना है, क्या करना है, उसके अकाउंट में पैसे डालने हैं। अब अकाउंट में पैसे डालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से आप किसी के अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं बताइए। आपने एक मैम सपोज डॉक्टर आरटीजीएस को ट्रांसफर दिखाया, है। हाँ मैम इंटरनेट बैंकिंग। मैम नेट बैंकिंग। हाँ इंटरनेट ट्रांस, हाँ और नेट नेफ्ट है। बैंक, तो उसमें अलग अलग ऐप्स आते हैं ना, गूगल पे है ना, है ना, आता है गूगल पे आता है ना, गूगल पे से आप कर रहे हो, पेटीएम, कौन कौन से और आजकल चलते हैं, भीम ऐप गूगल है ना, पे, फोन पे, पेटीएम। पेटीएम, यूपीआई, तो अमेजोन पे। हाँ ये बहुत सारे आपके तरीके हैं, ठीक है। करना क्या है, एट द लास्ट होना क्या है, मनी ट्रांजैक्शन होना है, क्या होना है, मनी ट्रांजैक्शन होना है। मगर किन किन तरीकों से हो सकता है, गूगल पे से हो सकता है, पेटीएम से हो सकता है ना, या सीधे सीधे अपने अकाउंट से अपने अपना ऐप खोला बैंक का और उससे पैसे सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिए उसके अकाउंट के नंबर लेकर के, है ना। तो सारे प्रोसेस में सेम सिमिलर क्या चीज है, सब सारे प्रोसेस में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि पैसे ट्रांसफर होने हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उन सब में हो क्या रहा है, एट लास्ट ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, चाहे वो शेयरिंग के थ्रू हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, एट द लास्ट क्या हो रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मनी ट्रांजैक्शन। कितने तरीकों से हो सकता है, मैंने बोला पेटीएम से हो सकता है, मैंने कहा गूगल पे से हो सकता है। तो ये जो तरीके हैं वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हमने किसी को दिए तो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, अगर हमने इस तरीके से दिया तो कहलाता हमारा पाई बॉन्ड। समझ में आ रही बात, अगर इस तरीके से दिया, भाई आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, आपने हाथ में पैसे लिए, उसको इस तरीके से पैसे दिए और इस तरीके से पैसे दिए, दे तो आप पैसे ही रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं, तो बॉन्डिंग तो आपकी हो रही है, ठीक है। मगर किस तरीके से दे रहे हैं, हेडेड से तरीके से दे रहे हैं कि इस तरीके से दे रहे हैं, दिस इज लेटरल एंड दिस इज हेडेड ओवरलैपिंग, ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या है, एक तरीके से हम ये मान लें कि हमारे डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट एप्स हैं, कि पेटीएम है, कि गूगल पे है, कि हमारा मोबीक्विक है, डिफरेंट एप्स हैं। मगर सिग्मा और ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और द कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, मनी ट्रांजैक्शन है, कि भाई दो लोग हैं उनके बीच में मनी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उनके बीच में आपस में दोस्ती हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वो हो गए। अब मतलब कि जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, तो किस तरीके से दिया, ऐसे दिया कि ऐसे दिया। अगर मैंने कहा कि O2 है, O2 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दोनों में शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कैसे शेयरिंग हो रही है, ऐसे शेयरिंग हो रही है कि ऐसे शेयरिंग हो रही है ना। तो ये जो टाइप्स हैं, दिस इज नॉट अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये जो शेयरिंग होती है कैसे होती है, तो इसके बारे में हम सिग्मा पाई बॉन्ड में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है, किस पैटर्न से हो रही है, किस तरीके से हो रही है। क्योंकि यहाँ पर दो ही पैटर्न यूज होते हैं, सिग्मा है या फिर पाई है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, मैंने पढ़ाया बताया था आप लोगों को, है ना। ये ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो किस तरीके से जाएंगे, हेडेड तरीके से जाएंगे या लेटरल के तरीके से जाएंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो अभी उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सिग्मा पाई बॉन्ड्स क्या है। तो जिसको जो भी डाउट होगा, है ना, कैसा भी, वो बिल्कुल ही आप लोगों का बिल्कुल दूर हो जाएगा। और उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से आप जितना भी मैंने पढ़ा दिया है ये सब आपके इंटर के बुक्स में है, उससे रिवाइज करेंगे, और जो मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ बच्चों, उसको अच्छे से नोट करते जाया करो, ठीक है। मुझे अटेंडेंस आज की कौन बच्चा भेजता है स्क्रीनशॉट,
चंदन। चंदन मैम। हाँ चंदन है भी। चंदन आर यू देयर? यस मैम। ओके बेटा, तो अभी अब जो कितना टाइम हो रहा है 12:56, तो मुझे अभी अटेंडेंस आप भेजिएगा, ठीक है? ओके मैम। चलिए ओके क्लास, अभी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अटेंडेंस के लिए पूरा अभी 48 या 58 स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी लेफ्ट कर गया होगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ओके चलिए, ओके क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गॉड थैंक यू ब्लेस मैम। यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. गॉड